Assalamu alaikum guys, welcome. Okay, so now we are gonna start out with the Nmdcat 2020 papers biology section. Okay, so let's begin. Okay, so question number 1 of the biology section, actually the 121 MCQ on the paper, and let's get started. Okay, it says that when the temperature of the surrounding rises, body responds by, okay, when the temperature of the surrounding rises, what does that mean? Well, when it's getting warmer, right? Rise in temperature means the surroundings temperature is increasing, so it's getting warmer and warmer or hotter. So hot conditions may, what's the body's response? Vasoconstriction? No, it won't. Vasoconstriction means constricting the arterioles, or it actually means reducing the diameter of the arterioles. If the diameter of the arterioles is reduced, then the heat lost to the environment will decrease, and we don't want that to happen. Okay, it will reduce the, it reduces the loss of heat to the environment. Okay, and it's already hot, we want to lose heat, but this is preventing the heat from being lost. So A to nahi ho sakta. What about option B, vasodilation? Yes, that's the answer. We need vasodilation because vasodilation means dilation. Dilate means increase in diameter of the arterioles, और अगर arterioles का diameter increase हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि अब आपके पास ज़्यादा blood flow होगा to the periphery, to the skin, and as a result more heat is lost from the body. Shivering cannot be the answer again, because shivering क्या करता है भाई? Shivering also increases the heat production in the body. Again, we don't want that to happen, क्योंकि already ही इतनी गर्मी होगी, and we want to lose more and more heat and reduce the heat which is being generated in the body. यही दो feedback mechanisms आपने पढ़े होंगे, ठीक है, in response to increasing temperature of the surroundings and raising body hair. ये भी जो है ना, ये erection of the hair जो होता है, ये तभी होता है जब आपका surrounding temperature fall करे. जब rise करता है तो ये relax हो जाते हैं, जो hair erector muscles होते हैं. Option D भी नहीं हो सकता, C भी नहीं हो सकता, A भी नहीं हो सकता. Only option B is the best answer. Now moving on to 122, the excretion of hypertonic means concentrated urine in humans is associated best with the, okay, how can the urine become concentrated? Well, urine concentrated कब होती है? The urine becomes concentrated when more water is lost, right? More, or in other words, you can say that it becomes concentrated when more water is retained. Sorry, not lost, it's retained. More H2O is reabsorbed. It's not lost, but rather it is reabsorbed. So अगर water reabsorb ज़्यादा होगा kidneys में, तो less water would be excreted in the urine. अच्छा, water reabsorption के लिए एक हार्मोन आपने पढ़ा होगा, ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन. ठीक है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का काम क्या होता है भाई? इट एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग डक्ट्स. आपने बुक में पढ़ा होगा. अच्छा, बुक में आपने कलेक्टिंग डक्ट्स तो पढ़ा होगा, लेकिन एक और बात भी बता दूं कि ADH ए लेवल्स में, आप अगर जो स्टूडेंट्स ए लेवल्स के हैं तो उन्होंने ये भी पढ़ा होगा, ADH also acts on the DCT, distal convoluted tubule, लास्ट पार्ट ऑफ DCT. ठीक है, DCT का जो बिल्कुल एंडिंग पार्ट होता है, जो कि कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ अटैच्ड होता है, उस पर भी ADH के रिसेप्टर्स होते हैं. एंड ADH के रिसेप्टर्स के रिस्पॉन्स में क्या होता है? एक्वापोरिन ज्यादा से ज्यादा वॉल में लग जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच मोर वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड. तो DCT इज द बेस्ट आंसर. अच्छा, कुछ कीज में मैंने देखा है उन्होंने लूप ऑफ हेनले दिया हुआ है. गाइस, लूप ऑफ हेनले आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज लूप ऑफ हेनले पर ADH एक्ट नहीं करता. ठीक है, ADH एक्ट्स ऑन DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट्स. 123, in humans the temperature regulation control center is located in, अच्छा, human में temperature regulating control center कहाँ पर located है? Well, it's located in the hypothalamus of the brain. तो इसका आंसर brain है. ठीक है, brain के hypothalamus में आपने पढ़ा होगा कि thermostat होता है आपके body का, जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर कर रहा होता है, और अगर टेम्परेचर राइज करता है तो नेगेटिव फीडबैक से उसे रिड्यूस करने की कोशिश होती है फिर, और अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा होता है बॉडी का,
तो फिर भी नेगेटिव फीडबैक से ही उसे राइज करने की कोशिश होती है, ठीक है। अगर टेम्परेचर फॉल कर रहा हो, अगर टेम्परेचर राइज कर रहा हो तो उसे रिड्यूस करने की कोशिश होती है, ठीक है। नाउ 124 एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन लिवर। अच्छा, ये लिवर के फंक्शंस यहाँ पर लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, कौन से फंक्शन है कौन सा नहीं है। तो इट डिटॉक्सिफाइज मेनी केमिकल पॉइजंस, यस दैट्स करेक्ट, क्योंकि लिवर में सबसे ज्यादा आपके पेरोक्सिसोम्स मिलते हैं आपको, ठीक है, राइट। most of the peroxisomes of the body are found in the liver. Peroxisomes आपको पता होगा कि they are detoxifying organelles. Peroxisomes सबसे ज्यादा liver cells में होते हैं, ठीक है। तो yes, of course, detoxification of many chemical poisons is done by the liver. Then produces ammonia for excretion by the kidney. That's also correct, क्योंकि यहाँ पर यूरिया बनने से पहले अमोनिया बनती है, right? And that's in the liver. फिर आगे produces urea and uric acid from the nitrogen. Yes, that's also correct, क्योंकि deamination of amino acids से हम यूरिया बना लेते हैं through the urea cycle. तो A, B, C तीनों ही इसके आंसर्स हैं, तो इसलिए all of the above are correct. Option D is the best answer. 125. The active uptake of sodium in the ascending limb or the thick loop of Henle is promoted by the action of, अच्छा भाई, ascending limb of the loop of Henle में जो active का मतलब energy और ATP is being used in here. Active uptake of sodium, okay, sodium in the ascending limb. You know that a loop of Henle is a loop, right? It's a U-turn, right? तो ये लूप ऑफ हैंडले कुछ इस टाइप का होता है और ये वाला पार्ट जो है उसका थिक होता है, राइट। दो लिम्स होते हैं उसके, ये वाला पार्ट नीचे की तरफ फ्लूइड को ला रहा होता है और ये वाला पार्ट फ्लूइड को ऊपर ले जा रहा होता है, राइट। ये जो नीचे की तरफ फ्लूइड को ला रहा होता है ये आपको पता है कि इट्स द डिसेंडिंग लिम्ब, एंड ऊपर वाला पार्ट इट्स द असेंडिंग लिम्ब, and ascending is thicker than descending. And ascending में sodium potassium ATPase pumps लगे हुए होते हैं, right? Sodium potassium ATPase pumps, and they use energy to pump 3 sodium out and 2 potassium in for every molecule of ATP they use. ये सब कुछ तो आपको पता होगा पहले से ही, right? अब यहाँ इन्होंने पूछा है कि ये प्रोमोट किस तरह से होता है। अच्छा, प्रोमोट के लिए सोडियम रीअब्जॉर्प्शन प्रमोशन के लिए क्या करना होता है भाई। अच्छा, सोडियम is a mineral, right? And sodium reabsorption आपका aldosterone कराता है. Option A is the best answer. This is a hormone which is a mineralocorticoid. ठीक है, minerals को reabsorb कराता है. अच्छा, and आपने renin angiotensin aldosterone cycle भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। काफी डिटेल उसकी तो खैर आगे MBBS में है, लेकिन उसमें भी यही होता है कि यहाँ आपके FSC के लेवल पर भी है, ठीक है। तो aldosterone it promotes sodium reabsorption. आगे चलते हैं। Which one of the following muscles are considered voluntary muscles? Voluntary आपको पता है जो which are under the control of the will. तो फिर skeletal muscles ही आपका आंसर है, because it's up to you when to move your limb. Okay, for instance मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ तो I can do that voluntarily. I can do that under my willpower. आगे 127. Which one of the following are myogenic type of muscles? Myo means muscle and genic means generated. So stimulated, muscle stimulated, meaning they are actually self-excitatory muscles. ये तो एक ही टाइप के मसल्स होते हैं आपके बॉडी के, कौन से भाई, कार्डियक मसल्स, राइट, कार्डियक मसल्स। क्यों? बिकॉज इनमें साइनोएट्रियल नोड लगा हुआ होता है जिसमें आपके सेल्फ एक्साइटेटरी सिग्नल्स जनरेट हो रहे होते हैं। आगे 128. What do we call the cell surface membrane of a muscle fiber? अच्छा, तो ये सार्कोलेमा इसका आंसर है, ठीक है। सार्कोमेर जैसे आपको पता है कि एक यूनिट होता है मसल का, एंड सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर ऑल रिलेटेड टू मसल्स, ठीक है। देन 128 के बाद 129 पे आ जाते हैं। ये रहा, एक सेकेंड, ये रहा, ओके। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स फंक्शन बोथ एज a neurotransmitter and hormones decreasing our perception of pain? अच्छा guys, ये वाला जो है ना, ये जरा आउट ऑफ कोर्स सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये परसेप्शन ऑफ पेन को आपको रिड्यूस करवाना है और न्यूरोट्रांसमीटर भी है और हार्मोन भी है। तो ये गाइस इसका आंसर एंडोर्फिन्स है, ठीक है। ये वाला मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा आउट ऑफ कोर्स है। नाउ एंडोर्फिन्स आपने नहीं पढ़ा होगा कहीं पर भी, ठीक है, ये MBBS में है लेकिन यहाँ नहीं है आपके पास। तो now 130. Which body function is controlled through positive feedback mechanism? अच्छा, positive feedback mechanism
से आपने लेबर कॉन्ट्रैक्शंस की एग्जांपल्स पढ़ी होगी, राइट। कंट्रोल करने के लिए हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर पर अगर पॉजिटिव फीडबैक आ गया तो वो कंट्रोल नहीं होता, वो dangerous होता है to the body. Why? Because that's a vicious cycle and a person may suffer from heat stroke then, ठीक है। उसमें फिर हाइपरथर्मिया हो जाता है बॉडी का, एंड वो एक विशियस साइकिल होता है, फिर बॉडी का टेम्परेचर राइज ही कर रहा होता है, फॉल नहीं होता, एंड दैट्स लीथल। फिर इंसुलिन प्रोडक्शन भी नेगेटिव फीडबैक से कंट्रोल होती है, पॉजिटिव से नहीं, एंड थायरॉक्सिन रिलीज भी हार्मोन है तो नेगेटिव फीडबैक होगा। आगे चलते हैं। Which one of the following is common to all neurons? Neurons पूछ रहे हैं। Neurons आपको पता है कि they are nerve cells, right? तो देख लेते हैं। अच्छा, common to all of them बोला यहाँ पर, all is a key term. A cell body which contains a nucleus, yes, your cell body does contain a nucleus, and all of the neurons have a cell body, and all of them have a nucleus. So option A बेस्ट ऑप्शन लग रहा है। आगे चलते हैं। थिक माइलिन शीट सब में नहीं होती, द नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स डू नॉट हैव माइलिन शीट। प्रेजेंस ऑफ नोड ऑफ रैनवियर, ये सिर्फ उनमें होगा जिनमें माइलिन शीट होगी, ठीक है, उनके बगैर नहीं होगा ये। और श्वान सेल्स अगेन माइलिन शीट से रिलेटेड है, बिकॉज माइलिन शीट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ श्वान सेल्स in the peripheral nervous system. आगे चलते हैं 132. Neurons are cells adapted for the rapid transmission of electrical impulses. To do this, they have long, thin processes called, अच्छा लॉन्ग भी है और थिन भी है और प्रोसेसेस भी है। अच्छा पहली बात तो ये देख लें, प्रोसेसेस पूछा है, प्रोसेसेस डेंड्राइट्स भी हैं और एक्सॉन्स भी है। माइलिन शीट और श्वान सेल्स तो नहीं हो सकते, बिकॉज दे आर नॉट प्रोसेसेस। माइलिन शीट इज एक्चुअली एन इंसुलेटिंग लेयर कवरिंग द एक्सॉन इटसेल्फ, कवरिंग द न्यूरॉन। बट अब डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स में ज्यादा लॉन्गर कौन से हैं? ये एक्सॉन्स जो है ये लॉन्ग होते हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होते हैं ये शॉर्ट प्रोसेसेस होते हैं जो डायरेक्ट सेल बॉडी से निकल रहे होते हैं। आगे 133. A dash is a junction between two neurons or between a motor neuron and a muscle cell. अच्छा, मसल सेल और मोटर न्यूरॉन के बीच में या फिर दो न्यूरॉन्स के बीच में कौन सा जंक्शन होता है भाई? साइनैप्स होता है, ठीक है। और वैसे न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन और मसल सेल्स के बीच में जो होता है वो मोटर एंड प्लेट बनाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, लेकिन साइनैप्स कह सकते हैं उसे भी। 134. Which one of the following represents the changes that occur in the ovary and the uterus approximately every 28 days involving ovulation with the breakdown and loss of the lining of the uterus? अच्छा भाई, uterus की lining ब्रेकडाउन भी हो रही होती है, एवरी 28 डेज में एक साइकिल चल रहा होता है, और ओव्यूलेशन में भी उसमें हो रही होती है। तो मतलब ये आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग के साथ जो चेंजेस हैं और जो ओवरी में चेंजेस हैं, ओवरी में चेंजेस नहीं बल्कि ओवरी से जो ओव्यूलेशन है उसको इंक्लूड करके एक साइकिल बना रहा है जो कि 28 डेज की होती है अप्रोक्सीमेटली। तो ये कौन सी साइकिल आपने पढ़ी है भाई? एवरी 28 डेज वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है आपने। एम्ब्रियो फॉर्मेशन तो कहीं भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यूट्रीन साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल काफी क्लोज ऑप्शंस है, लेकिन आप अगर बुक में देखेंगे यूट्रीन साइकिल आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेस्ट आंसर है आपको, ठीक है। ओव्यूलेशन इन्होंने यहाँ दे दिया है, ओव्यूलेशन इज इंक्लूडेड इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। नाउ नेक्स्ट, आफ्टर 134 comes 135, ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। Which of the following disease is sexually transmitted? एड्स आपका आंसर है इसमें, ठीक है। ये तो याद करना है, सिंपल है। और which of the following hormones of the pituitary gland regulate the menstrual cycle? अच्छा जी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन के ये सारे हार्मोन्स है, ठीक है, जो भी इन्होंने आंसर ऑप्शन में दिए हुए हैं ना। फॉर एफएसएच एंड ईस्ट्रोजन दोनों कंट्रोल करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। एलएच और ईस्ट्रोजन भी कंट्रोल करते हैं, एफएसएच एंड एलएच भी कंट्रोल करते हैं, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन भी करते हैं। प्रोजेस्टेरॉन तो खैर नहीं, वो तो फिर बात की बात है, लेकिन ईस्ट्रोजन करता है मेनली। प्रोजेस्टेरॉन करता है कुछ हद तक, क्योंकि वो मेनली उसका काम आता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है एंड फिर वो मेंटेन रखते हैं। तो एक्चुअली प्रोजेस्टेरॉन होता है एंड ईस्ट्रोजन भी होता है, ठीक है, दोनों होते हैं। लेकिन अब इन्होंने पूछा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो रिलीज करता है वो बताओ, ये की टर्म है। अगर किसी ने ये टर्म स्किप कर दिया ना तो उसका आंसर ये गलत होना था, ठीक है। लेकिन अगर ये टर्म किसी को पता है, ये इस पे गौर कर लिया ना, तो बस आपका आंसर बच गया, ठीक है। एंड व्हाई एम आई सेइंग दैट? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड इट सीक्रेट्स एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, एंड both of them regulate the menstrual cycle. So FSH and LH are your answers. So option C is the correct answer. Both of them are your answer. Okay, option C, FSH and LH. Although estrogen and progesterone do regulate the menstrual cycle, but
pituitary gland, they are not secreted from the pituitary gland. Now 137, okay, hemophilia A and B, color blindness and testicular feminization are examples of hemophilia A and B. आपने पढ़ा होगा, color blindness भी आपने पढ़ा होगा, ये शायद ना पढ़ा हो, testicular feminization कोई बात नहीं, ये MCQ जो है ना इसमें एक ऑप्शन मेरे ख्याल से मिसिंग है, क्योंकि देखें हीमोफीलिया ए एंड बी एंड कलर ब्लाइंडनेस ये आपने भी पढ़ा होगा कि ये सारी की सारी जो है ये एक्स लिंक्ड हैं, ठीक है, लेकिन एक्स लिंक डोमिनेंट नहीं, एक्स लिंक रिसेसिव है, एंड यहाँ पर ये एक्स लिंक रिसेसिव का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत क्वेश्चन है, इसको कैंसिल कर देना चाहिए इन्हें। आगे चलते हैं 138, which traits are more likely to affect men than women? अच्छा भाई, कौन से traits men को ज्यादा affect करेंगी as compared to women? यहाँ पर जो है ना ये X linked recessive आंसर ही है आपका ऑप्शन A, एंड रीजन उसका मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, because you guys know कि females have 2 X chromosomes and males only have a single X chromosome and a Y chromosome. Okay, and Y chromosome is shorter in length as compared to the X chromosome. This is X and this is Y. Okay, and if they are recessive, if the disease is recessive, for instance hemophilia, okay, hemophilia, if hemophilia is recessive, it is recessive, so that means if we have 2 pairs of X chromosomes, both of them have to be X with the recessive allele to show the hemophilic character, right? And जब तक दोनों ही recessive mutated alleles नहीं होंगे तब तक hemophilia disease नहीं होगी in case of females. That means if females, even if they have a single mutated hemophilia allele, they have a single mutated, they have a mutated allele and a normal allele, they won't suffer from hemophilia, they'll just be carriers. But in case of males, since we only have a single X chromosome, so even if we get even a single mutated allele, meaning अगर दोनों में से कोई एक भी हमारे पास आ गया, मतलब एक ही mutated allele आ गया हमारे पास, तो दूसरा वाला तो Y है, उस पे तो होता ही नहीं है, तो we will suffer from hemophilia. So that's why the males are more likely to be affected by hemophilia or by X-linked recessive diseases as compared to females, because we lack 1 X chromosome. Okay? And we actually have only 1 X chromosome, and the other is Y chromosome, which is actually a very short chromosome. Okay? आगे चलते हैं 139. Dash alleles both have an effect on the phenotype of a heterozygous organism. Okay. If an organism is heterozygous, heterozygous means an organism having a dominant as well as a recessive allele. Okay, for instance, capital R, small r. Okay, this is a heterozygous organism. So there are 2, okay, capital R is one allele and small r is another allele. If both of them are expressed in the phenotype of the heterozygous organism, फिर उस केस में वो दोनों एलील्स जो हैं वो को-डोमिनेंट हो जाएंगे. डोमिनेंट क्यों नहीं? Because in case of dominant, only 1 allele is expressed. In case of recessive, the allele will only be expressed in absence of the dominant allele. But in case of co-dominant alleles, both of them, for instance, sickle cell anemia, okay, सिकल सेल एनीमिया के 2 एलील्स होते हैं, एक HbA होता है जो कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का होता है, और दूसरा हीमोग्लोबिन S होता है जो कि सिकल सेल एलील होता है, जो कि म्यूटेटेड एलील होता है हीमोग्लोबिन का. तो अगर दोनों मौजूद हैं, ठीक है, हेटेरोजाइगस सिकल सेल एनीमिया का पेशेंट है, तो उनके पास सिकल सेल एनीमिया नहीं होता बल्कि सिकल सेल ट्रेट होता है, एंड उनके ब्लड स्मेयर में आपको नॉर्मल हीमोग्लोबिन के भी रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे और सिकल्ड हीमोग्लोबिन के भी रेड ब्लड सेल्स मिलेंगे आपको. So both of them are expressing themselves in the phenotype of the organism, of the heterozygous organism. So co-dominance की example हो गई. आगे चलते हैं 140 पर. When both the alleles of a gene pair are the same, so organism is called. अच्छा जी, दोनों alleles अगर same हैं तो फिर उस केस में we call it homozygous. Homo means same, right? Hetero means different. If one is dominant and other is recessive, उस केस में क्या होगा, मतलब
एक एलील, हाँ, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, तो इस केस में हो जाएगा हेट्रोजाइगस। लेकिन अगर दोनों ही डोमिनेंट है या दोनों ही रिसेसिव है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। आगे चलते हैं, मतलब both the alleles if they are the same, they are identical, is homozygous, and if they are different, it's heterozygous. Now 141, in which type of cells cell wall is not present? Okay, cell wall is not present in humans, right? It's not present in liver cells. Now 142, 70s sized ribosomes are found in the cells of, 70s is a characteristic of prokaryotes, and bacteria are the prokaryotes. Okay, now next 143, according to the fluid mosaic model of the cell membrane, which zone is embedded inside? Okay, fluid mosaic आपको पता है कि ऊपर भी अगर मैं ये, अच्छा, fluid mosaic model में which layer is embedded inside, अगर आप फॉस्फोलिपिड्स को देखें तो उनका जो फॉस्फेट रीजन होता है, मतलब जो पोलर रीजन होता है वो बाहर की तरफ होता है, एंड जो नॉन पोलर होता है, मतलब हाइड्रोफोबिक होता है, वो अंदर की तरफ होता है, राइट, नॉन पोलर। इसी तरह से जो नीचे वाले लिपिड बायलेयर के जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, so now this is the hydrophobic region which is on the inside. So which zone is embedded inside? It's the hydrophobic one. Option A is the correct answer. Now 144, the membrane separating the vacuole from the cytoplasm is called tonoplast. ये तो आपने याद रखना है, ठीक है। Now 145, select the one which is not a function of smooth endoplasmic reticulum. Okay, metabolism of lipids, that is a function, इन्होंने not a function पूछा है, ठीक है। Smooth endoplasmic reticulum does synthesize lipids, especially the steroids. Transmission of impulses, अच्छा ये हो सकता है because we know के T tubules जो हैं उनके थ्रू impulses अंदर जाती हैं, ठीक है, into the muscle cells, and from there they are in contact with the endoplasmic reticulum, with the sarcoplasmic reticulum of the muscle cells, and then from there they cause the release of the calcium. Okay, तो या ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस हो सकती है, ठीक है, बट ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, हमें नहीं पता, राइट। आगे वाले चेक करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, यस दे डू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स, ट्रांसपोर्ट वैक्यूल्स बनाते हैं, रिमेंबर आपने बुक में पढ़ा भी होगा कि ट्रांसपोर्ट वैक्यूल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, is this a function? Is this a function of smooth endoplasmic reticulum? Processing of glycoproteins is the function of rough endoplasmic reticulum. So option D आपका आंसर है। Glycosylation कौन कराता है? Rough endoplasmic reticulum, right? तो option D आपका correct answer है। 146. Which of the following organelles are involved in the synthesis of plant cell wall? Golgi complex, ठीक है, Golgi complex cellulose लाकर डिपॉजिट कराता है, जिसके बाद आपकी प्लांट सेल वॉल बन जाती है, ठीक है, ये आपने प्रोसेस पढ़ा होगा डिटेल में। आगे चलते हैं। 147, which property of water helps to maintain the integrity of the lipid bilayer membranes? अच्छा जी, लिपिड बायलेयर को मेंटेन की इंटेग्रिटी को मेंटेन करना है तो कौन सी प्रॉपर्टी वाटर की जो है वो उसको हेल्प करेगी। अच्छा, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन जो है इसमें ये काफी क्लोज ऑप्शंस हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो नहीं हो सकता ऑफ कोर्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वाटर एक दूसरे के साथ इन कांटेक्ट होगा, ठीक है। कोइजन एडिशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही होती है। तो ऑप्शन बी एंड सी तो ये तो सिमिलर ऑप्शंस हैं। ऑप्शन डी को अगर आप देखें, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, अगर if the water excludes the hydrophobic region, ठीक है, if the water excludes the hydrophobic region, then what would happen? The hydrophobic region or the hydrophobic sites would face each other, ठीक है, and if the hydrophobic site faces each other, then we'll get the hydrophobic region of the membrane, ठीक है, जो कि आपकी क्या कहते हैं, ये जो टेल्स होती हैं फॉस्फोलिपिड्स की, ये टेल्स एक दूसरे की तरफ फेस कर रही होती हैं, राइट। तो ये वाली टेल्स एक दूसरे की तरफ फेस क्यों करती हैं? क्योंकि बाहर का जो रीजन होता है वो तो एक्वस एनवायरनमेंट होता है, तो वाटर का एनवायरनमेंट है, तो ये वाटर जो है ये इस
इस हाइड्रोफोबिक रीजन को जो है रिपेल कर रहा होता है, ठीक है, इसे रिपेल कर रहा होता है, मतलब ये अगर इस साइड पे आ जाती है ये टेल तो उसे रिपल्जन फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इट एंटर्स ऑन द इनसाइड. तो अकॉर्डिंग टू मी हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन वुड बी द बेस्ट आंसर, because specific heat capacity cannot be the answer, of course, that's clear. But hydrogen bonding and cohesion and adhesion, the cohesion and adhesion is due to the hydrogen bonding of water. So both of them are similar options, so option D should be the best answer. And of course अगर ये इन इस हाइड्रोफोबिक रीजन को एक्सक्लूड कराएगा, ठीक है, वाटर हाइड्रोफोबिक रीजन को एक्सक्लूड करेगा तो हाइड्रोफोबिक रीजन अपना एक रीजन बना लेगा, जिसकी वजह से ये आपकी क्या चीज बन गई, फिर लिपिड बायलेयर बन गई ना, इसलिए. Now water acts as a universal solvent because of, अच्छा, heat of vaporization is not the answer, of course. Now hydrogen bonding, universal solvent due to hydrogen bonding, high polarity, cohesion and adhesion. अच्छा, cohesion and adhesion से तो कुछ नहीं होता. Hydrogen bonding and high polarity, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका आंसर हो सकता है और हाई पोलैरिटी भी आपका आंसर है. ज्यादा बेटर आंसर आपका ऑप्शन सी होगा, हाई पोलैरिटी, बिकॉज सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ उनके साथ वाटर की हो पाएगी जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं. फॉर इंस्टेंस आपका HF का मॉलिक्यूल अगर आप ले लें, it can dissolve in water because it can form hydrogen bonds with water, right? Hydrogen bonds with water. But what about HCl? It cannot form hydrogen bonds. HCl तो hydrogen bonds नहीं बनाता. HCl can only form permanent dipole interactions. लेकिन फिर भी ये dissolve हो जाता है water में, क्यों? Because of the polar nature of water. ठीक है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता, बट पोलैरिटी वाटर में मौजूद है, इसलिए इट कैन डिसॉल्व इन वाटर. सो हाई पोलैरिटी वुड बी द आंसर. बट अगेन इतने क्लोज आंसर्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करेक्ट है आपका आंसर, लेकिन इसकी की आने के बाद ही पता चलेगा. हो सकता है ये क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाए. आगे चलते हैं. 149. Lipids store double the amount of energy as compared to carbohydrates because of, अच्छा, lipids में double energy क्यों होती है? Because of the high proportion of hydrocarbons, because of the high proportion of the carbon hydrogen bonds. Carbon hydrogen bonds ज्यादा होंगे तो क्या होगा? More turns of Krebs cycle होंगे, more turns of Krebs cycles, of Krebs cycle, and as a result of which more ATP would be generated. एक्चुअली मोर एटीपी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से होगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल से क्या होगा? मोर एनएडी, रिड्यूस एनएडी, रिड्यूस एफएडी प्रोड्यूस होगा, एंड एज अ रिजल्ट क्या होगा? मोर रिड्यूस एनएडी, मोर रिड्यूस एफएडी वुड इन टर्न result in more ATP production by the electron transport chain. Now 150, which of the following is an unsaturated fatty acid? It's the oleic acid. ठीक है, ये monounsaturated fatty acid है. Now unsaturated means having carbon-carbon double bonds. Now 151, oh wait a minute, okay, 151. Monosaccharides have a general formula represented by CnH2ON, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं CH2O ब्रैकेट्स N. ये मोनोसैकराइड्स का जनरल फार्मूला है, राइट? ये वाला या ये वाला, तो ऑप्शन ए आपका आंसर है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है, दे आर रॉन्ग. नाउ NAD is an example of, okay, if you read out the full form of NAD, it means nicotine amide adenine dinucleotide. Okay, nicotine amide adenine dinucleotide. So dinucleotide, it's a dinucleotide. Now lock and key model of enzyme action proposed by ML Fisher suggests that, okay, what does the lock and key model of enzyme suggest? Lock and key model, according to the lock and key model, enzymes, they have a fixed shape which is specific or which is complementary to their substrate, or which is specific to the reaction they are catalyzing. So enzymes are unbiased for the substrate. Well, unbiased का तो कोई जिक्र नहीं था, specificity का था, ठीक है, they are specific for the substrate. Enzymes can modify their active site? नहीं, they cannot modify according to the lock and key hypothesis. ठीक है, they can modify according to the induced fit hypothesis, जिसके बारे में यहाँ बात नहीं की गई है. Lock and key model का मतलब ये है कि enzymes बहुत ज़्यादा rigid हैं, क्योंकि lock और key बहुत fixed shape के होते हैं, rigidity होती है इनकी. लेकिन induced fit hypothesis ये कहता है कि enzymes can modify their shape, लेकिन यहाँ पर modification नहीं होगी इसके मुताबिक. आगे चलते हैं. Enzymes are restricted to one
Reaction type, that's the answer. They are specific to a particular reaction. Okay, now आगे चलते हैं. Most enzymes have an optimum temperature of around. अच्छा, यहाँ ये थोड़ा सा unclear इसलिए कहूँगा इसे क्योंकि इन्होंने type of enzymes का नहीं कहा है. यहाँ it would have been better if they could have mentioned that most enzymes of the body of humans or something like that. ठीक है, they have an optimum temperature of around, लेकिन यहाँ कुछ कहा नहीं है तो हम assume करते हैं कि ये ह्यूमंस के एंजाइम्स की बात कर रहे हैं. एंड ह्यूमंस का जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, राइट. अप्रोक्सीमेटली रेंज होती है वैसे, लेकिन 37 डिग्री सेल्सियस. तो 37 डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है. ठीक है, एंड थोड़ा सा ज्यादा मतलब 40 इज योर आंसर. नाउ नेक्स्ट 155. enzymes work by lowering the dash of the reactions they catalyze. अच्छा जी, एंजाइम्स क्या चीज लोअर करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी लोअर करते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. बाय प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर द रिएक्शन टू प्रोसीड, द एक्टिवेशन एनर्जी व्हिच हैज अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी. ठीक है, आगे चलते हैं. After 155 comes 156. First stable compound during the Calvin cycle is, okay, 3-PGA. अगर आपको याद हो Calvin cycle तो 3-PGA is the answer. 3-phosphoglycerate is your answer. Option A. ठीक है, इससे पहले एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है, लेकिन इन्होंने स्टेबल पूछा है तो स्टेबल यही है. आगे 157. What is the function of ribulose? अच्छा, इसे भी मैं अनक्लियर कहूंगा क्योंकि राइबुलोज नाम की कोई चीज नहीं है. हमारे पास रुबिस्को नाम की जरूर चीज है, हमारे पास RUBP के नाम से एक चीज है, लेकिन राइबुलोज के नाम से, सिर्फ राइबुलोज के नाम से नहीं है. इन्होंने ये पूरा या तो रुबिस्को या RUBP लिख लेना चाहिए था. खैर, मैं अज्यूम करता हूं कि दे आर टॉकिंग अबाउट रुबिस्को, एंड इफ दे आर टॉकिंग अबाउट रुबिस्को then what happens? Or if they are talking about RUBP, रुबिस्को के बारे में फिर भी हम बात नहीं कर सकते, हम अज्यूम करते हैं they are talking about RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट. ठीक है, तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो है ये फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट कंपाउंड है. ठीक है, जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है, रुबिस्को उसे कैटलाइज करता है, आगे प्रोडक्ट्स बनाते रहते हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी फ्यूल में राइबोलोज नाम की कोई चीज नहीं है. इंटरमीडिएट्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन भी नहीं है. कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए भी राइबोलोज नहीं होता, वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स होते हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. Which of the following processes does not need pyruvic acid as a substrate? अच्छा, pyruvic acid किस चीज में substrate नहीं होता? Alcoholic fermentation में pyruvic acid is involved. ठीक है, that's not the answer. Calvin cycle में pyruvic acid is not involved. ठीक है, इसमें RUBP से start होता है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है. बाकी एरोबिक रेस्पिरेशन में pyruvic acid यूज होता है. ठीक है, लिंक रिएक्शन में, एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी पायरुविक एसिड यूज होता है. आगे चलते हैं. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन इज प्लास्टोसायानिन. ठीक है, फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम सी जो है ये दोनों आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं, एंड प्लास्टोक्विनोन क्विनोन कंटेनिंग है. ठीक है, कॉपर कंटेनिंग यही है, ऑप्शन सी. 160. In electron transport chain, ATP synthesis takes place when electrons moves from, इसका आंसर होगा प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम्स. ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये डायग्राम बता देता हूँ. ये मैंने इंटरनेट से उठाई है. कहाँ गई? ये रही. यहाँ पर ये प्लास्टोक्विनोन आपको नजर आ रहा है, ये प्लास्टोसायानिन नजर आ रहा है, और ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स बीच में नजर आ रहा है. तो प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ऑनवर्ड्स एंड सो ऑन, ये इस सबसे जो है ना एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है. तो मैंने ये फर्स्ट स्टेप्स को ही ले लिया. ठीक है, यहाँ से एनर्जी जो रिलीज हुई उससे एटीपी आपकी बन गई. ठीक है, डाउन हिल रिएक्शन जो होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग डाउन हिल टू जनरेट एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. एनीवेज, प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम आपका आंसर है यहाँ पर भी. देन 160 के बाद चलते हैं 161 पर, या फिर यहीं रोक देते हैं. 161 ऑनवर्ड्स हम अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे. ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड लक फॉर योर रिजल्ट्स.